سوال کر سکتے ہیں. پہلے اپنا نام اور پروفیشن میرا بتائیں. نام جسمیت سنگھ اروڑا ہے. میں ایک بزنس مین ہوں اور آج شاید بہت زیادہ خوش قسمت ہوں کہ ڈاکٹر ذاکر نائک بہت دن بعد ایک انسان ایسا ملا ہے جو بہت ٹیکنیکلی ریلیجن پہ بول رہا ہے. اینڈ اسلام جس کا کہ کانسٹیٹیوشن قرآن ہے، اس قرآن کو لکھا گیا تھا آج سے بہت سال پہلے. اس طرح سے بہت سارے کتابیں جو بہت سال پہلے لکھی گئی. ہر ایک ٹائم پہ کانسٹیٹیوشنز بنے. 500 سال پہلے سکھزم بنا. سکھزم میں بھی بہت کچھ لکھا گیا. اسلام ایک بہت ایکسلنٹ ریلیجن ہے. میرا جگری دوست مسلم ہے، علی نام ہے اس کا. لیکن آج تک مجھے یہ سمجھ میں نہیں آیا کہ ہر ریلیجن میں ایک جب کانسٹیٹیوشن دیا جاتا ہے، ہمارے انڈین کانسٹیٹیوشن میں بھی ہے کہ یہ آپ کے رائٹس ہیں، یہ آپ کی ڈیوٹیز ہیں، یہاں آپ بچ سکتے ہو، یہاں آپ نہیں بچ سکتے ہو. یہ شاید آپ کے گیٹ اویز ہیں. ایکسیپشنل کیسز فار ہم اسلام میں بھی دیکھ سکتے ہیں کہ بھی اگر آپ بیمار ہو تو آپ بیٹھ کے نماز پڑھ سکتے ہو. تو آج اس طریقے سے اسلام میں بہت ساری گیٹ اویز ہیں جس کا کہ میں نے دیکھا ہے کہ ہمارے مسلم بھائی اور خاص کر کے نان مسلمز اس کے ابیوز بہت زیادہ کرتے ہیں. اسلام از ون آف دی موسٹ ابیوز ریلیجن ان دی ورلڈ. وائی آپ لوگ اتنی ٹیکنیکلی باتیں کرتے ہو، اس ابیوز کو اپنے اسلام بھائیوں سے نہیں بچا پا رہے پلس نان مسلموں سے نہیں بچا رہے ہو، کیوں؟ ہمارے بھائی صاحب نے بہت اچھا سوال کیا ماشاءاللہ، اور بہت اہم سوال اور بہت صحیح سوال. انہوں نے کہا کہ کتنے دیگر مذاہب ہے اسلام میں، اور الحمدللہ اسلام کے بارے میں کچھ جانکاری رکھتے ہیں. کہتے ہیں کہ اس کے اصول ہے حرام حلال، اجازت ہے، اگر آپ بیمار ہے تو بیٹھ کے نماز. بالکل صحیح فرمایا. اتنا ٹیکنیکل ریلیجن ہونے کے باوجود وائی از اٹ دا موسٹ ابیوز ریلیجن؟ سب سے زیادہ کوئی مذہب کے خلاف آواز آج کی تاریخ میں وہ اسلام کے خلاف. کیوں؟ بہت اچھا سوال. مذہب کا سوال ہے کہ اسلام کے خلاف سب سے زیادہ لوگ کیوں خلاف بات کر رہے؟ کیوں؟ اس کی وجہ ہے کیونکہ جو لوگ اسلام کو نہیں پسند کرتے انہیں ڈر ہے کہ اگر اسلام پھیلے گا تو ان کے لیے خطرہ ہے. آج اسلام سب سے زیادہ پھیلنے والا مذہب ہے ساری دنیا میں. اگر آج کی میڈیا، ٹیلی ویژن چینل ہو، سیٹلائٹ چینل ہو، انٹرنیشنل نیوز پیپر ہو، انٹرنیشنل میگزین ہو، سب سے زیادہ جو خلاف بات کر رہے کوئی بھی مذہب کے وہ ہے اسلام. آج کے پیپر میں میں نے پڑھا کشونت سنگھ وہ بہت اچھا مانا والا لیکھک ہے. آج کے ٹیلی گراف پیپر میں کلکتہ میں نے پڑھا کہ اس کو بھی اسلام کے خلاف بات کرنے کا شوق آ گیا. کیوں؟ اور آج کے پیپر میں لکھتا ہے کشونت سنگھ کہ چند مہینوں سے میں لگاتار کیوں ٹی وی دیکھ رہا ہوں، خصوصاً ڈاکٹر ذاکر نائک کے پروگرام. چند مہینوں سے کشونت سنگھ نے ایک آرٹیکل لکھا تھا چند مہینے پہلے میرے بارے میں، میرے خلاف اٹھ پٹانگ. کچھ پرابلم نہیں، کچھ فرق پڑتا نہیں. آج بھی لکھا لیکن آج جو حکمت کے ساتھ لکھا. پہلے جو لکھا تھا سب غلط لکھا تھا، آج حکمت کے ساتھ لکھا. کہنے لگا کہ میں ڈاکٹر ذاکر نائک کو دیکھا، سائنس کے بارے میں بات کر رہا، تقریر کر رہی تھی، مجھے پتا نہیں تھا کہ قرآن بھی سائنس کے بارے میں ذکر کرتا ہے وغیرہ وغیرہ وغیرہ. پہلے ذرا تعریف کی، پھر اس نے کہا کہ میں نے ویمن رائٹ دیکھ رہا ہوں لیکن ڈاکٹر نائک یہ کہتے ہیں کہ خواتین کو حجاب نہیں ہونا چاہیے، سارا جسم ڈھکا ہونا چاہیے، صرف چہرہ اور ہاتھ رس تک کے دکھ سکتا ہے، کو ایجوکیشن نہیں ہونا چاہیے اور ہیڈ آف اسٹیٹ نہیں ہونا چاہیے. جو چیز کہا بالکل صحیح کہا، لیکن چن چن کے کہا. کوئی بھی انسان اگر پڑھے گا یہ سمجھے گا کہ اسلام مذہب کے اندر خواتین کے حقوق ہی نہیں ہے. اسے کہتے ہیں an act of a devil، شیطان کا کلام، شیطان کی قلم. افسوس کی بات ہے کہ پہلے بار جب میرے خلاف انہوں نے
वो आर्टिकल लिखी, उनके चाहने वालों ने उनके खिलाफ लिखे, मुझे फैक्ट आते, मैंने जवाब नहीं दिया, क्या जवाब देना, जवाब देने के लायक होगा तो देंगे ना। जब उसने आर्टिकल लिखा तो कई लोग ने लिखा कि खुशवंत सिंह मैं आपका फैन था, आपका चाहने वाला था, लेकिन ये आर्टिकल पढ़ने के बाद मुझे अफसोस हो रहा है। जो भी चीज उन्होंने लिखी, फिर लिखते हैं कि डॉक्टर जाकिर नाइक को एजुकेशन के खिलाफ है। को एजुकेशन मतलब लड़का लड़की साथ में बैठ के पढ़ना, उसके खिलाफ है। अगर औरतों को नहीं पढ़ाएंगे तो औरतें तरक्की कैसा करेंगे, कैसा मतलब है? वो चुन चुन के मेरी तकरीर, वो यही नहीं कहा कि तकरीर में मैंने कहा कि अल्लाह के रसूल ने कहा कि हर मुसलमान के लिए फर्ज है इल्म हासिल करना, चाहे वो औरत हो या मर्द हो। वो मेरी आधी बात खा गए, सिर्फ वो पॉइंट लिए जिसमें मैं कहता हूं कि औरत और मर्द साथ में बैठ के गले में हाथ डाल के पढ़ना नहीं चाहिए। वो छोड़ के वो चीज को कोट करके बाकी चीजों मैंने कहा कि खवातीन को पढ़ाना फर्ज है, इल्म हासिल करना उनके लिए फर्ज है। तो कुछ चीज बातें आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट लेना और कोट करना ये सही नहीं। जो भी कोई अगर वो कसेट देखेगा, वुमेन राइट्स मेरी कसेट जिसका जिक्र कर रहे, वो फिर से खुशवंत सिंह पर एतराज करेगा कि क्या वो बकवास कर रहा है। मैंने ये कहा कि यूके गवर्नमेंट कह रही है कि आदमी और औरत, लड़का लड़की साथ में पढ़ाई करेंगे तो उनका तवज्जो पढ़ाई से ज्यादा लड़की लड़का पे रहेगा। तो वो कहता है कि डॉक्टर जाकिर नाइक कह रहे, उनको ये कहना चाहता था कि बीबीसी में एक प्रोग्राम आया था जिसमें जिक्र है कि लड़का लड़की साथ में पढ़ने से तवज्जो पढ़ाई पे कम होती है, इसीलिए यूके में सिंगल सेक्स स्कूल ज्यादा खोल रहे हैं। ये मेरा आर्टिकल का पोजीशन था। तो खुशवंत सिंह को ये कहना चाहिए कि बीबीसी और यूके में ऐसी वाहियात चीज अगर लोग रिसर्च करेंगे तो यूके तरक्की नहीं करेगा। वो मेरे को इल्जाम लगा रहे, आप समझ रहे? तो इसे कहते हैं कि येलो जर्नलिज्म। क्यों? इस्लाम के खिलाफ लिखेंगे तो पैसा मिलेगा, मिलेगा क्या नहीं? अब सलमान रश्दी कौन जानता था उनको? बहुत कम लोग जानते थे, अभी सारी दुनिया जानती। इस्लाम के खिलाफ लिखो तो आपने जो कहा कि वाई इज इट द बिगेस्ट अब्यूज रिलीजन, बिकॉज इट इज द स्केपगोट ऑफ टुडे। क्योंकि इस्लाम अल्हम्दुलिल्लाह सबसे ज्यादा फैलने वाला मजहब है। अगर खुशवंत सिंह सही है, अगर ये बाकी लोग जो कहते हैं कि इस्लाम एक रिलीजन ऑफ टेररिज्म है, एक दहशत गर्दी का मजहब है जिसमें अनसाइंटिफिक है, खवातीन के हुकूक नहीं है, तो आज के तारीख में सबसे ज्यादा फैलने वाला मजहब इस्लाम क्यों है? अमेरिका में आज सबसे ज्यादा फैलने वाला मजहब इस्लाम है, यूरोप में सबसे ज्यादा फैलने वाला मजहब इस्लाम है। और आप जानते हैं जो लोग इस्लाम कबूल कर रहे हैं उनमें से 2/3 हिस्सा, 2/3 ऑफ द पीपल, मोर देन 65% ऑफ द पीपल एक्सेप्टिंग इस्लाम, जो लोग इस्लाम कबूल कर रहे हैं 65% उनमें से खवातीन है, औरतें हैं। अगर इस्लाम खवातीन को हुकूक नहीं देता तो ये अमेरिकन औरतें इस्लाम क्यों कबूल कर रहे, ये यूरोपियन औरतें इस्लाम क्यों कबूल कर रहे? क्योंकि इस्लाम में उनको हुकूक मिल रहे। अगर खुशवंत सिंह सही है कि इस्लाम में खवातीन को हुकूक नहीं है तो औरतें इस्लाम क्यों कबूल कर रहे? क्यों? क्योंकि उनने इस्लाम का मुताला किया है और उन्हें पता लग गया है कि सिर्फ इस्लाम में इस्लाम में खवातीन के हुकूक है जिनसे वो तरक्की कर सकते। तो आज लोग इस्लाम के खिलाफ क्यों बात कर रहे? क्योंकि अगर इस्लाम जिस तेजी से फैल रहा है तो लोगों को खतरा है कि इस्लाम फैलेगा तो इस्लाम में शराब हराम है, नाच गाना, मायागिरी हराम है, पोर्नोग्राफी हराम है, रिश्वत देना हराम है। अगर ये फैलेगा तो बहुत लोगों को नुकसान होगा। तो लोग अपनी सारी ताकत लगा, अमेरिका पहले कम्युनिज्म के खिलाफ थी, अभी कम्युनिज्म गया, अब इस्लाम के खिलाफ। उन्हें खतरा है इस्लाम से। क्या खतरा है? कि इस्लाम जिस तेजी से फैल रहा है उनको जो लगता है कि दुनिया में फायदे हैं, जो चीजें वो कर रहे हैं, डांसिंग, कोटिंग,
alcoholism, drug addict, वो बंद हो जाएंगे, उन्हें डर है। तो जो भी इस्लाम के खिलाफ अगर बात कर सकता है उसको बढ़ावा देते हैं। तो इसीलिए इस्लाम हैज बीन मेड द सॉफ्ट टारगेट। बट अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, इसके बावजूद इस्लाम सबसे तेजी से फैलने वाला मजहब है। 11 सितंबर का वाकया हुआ, 5,000 से ज्यादा लोग मर गए न्यूयॉर्क के अंदर वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में। जो ऐसा हुआ गलत है। जिसने भी 5,000 लोग को मारा कुरान के खिलाफ है। कुरान कहता है कि सूरह माइदा में सूरह नंबर 5 आयत नंबर 32 में कि जो भी इंसान कोई भी दूसरे इंसान का कत्ल करता है, जान से मारता है, सिवा कत्ल के बदले कत्ल या धरती पे फसाद फैलाने के लिए, ये दो वजह के अलावा अगर कोई भी इंसान दूसरे इंसान का कत्ल करता है, वो ऐसा है कि सारी इंसानियत का कत्ल कर रहा है। और कोई भी इंसान दूसरे इंसान को बचाता है, चाहे वो मुस्लिम हो या मुस्लिम हो, वो सारे इंसानों को बचा रहा है। तो वो जो हादसा हुआ गलत हुआ, उसके बाद मीडिया इस्लाम के खिलाफ है। उसके बावजूद अमेरिका में 9 महीने में 11 सितंबर 2001 के बाद 35,000 अमेरिकन इस्लाम कबूल करे। क्यों? यूएन नेटली के हिसाब से तालिबान ने पकड़ा था, उसके हिसाब से 22,000 यूके के लोग इस्लाम कबूल करे। क्यों? यूएन नेटली को तालिबान ने पकड़ा था 6-7 दिन के लिए, छोड़ने के बाद उसने इस्लाम कबूल की। क्यों? जो खातून गई थी अफगानिस्तान तालिबान के खिलाफ लिखने के लिए, 7 दिन उसको कैद रखा। जब छूट गई तो लोग ने पूछा आपके साथ क्या बर्ताव किया? जिस तरीके से एक मेहमान के साथ बर्ताव करते। इतनी मुतासिर हुई, इस्लाम कबूल की। मीडिया क्या हो गई वो? क्यों? पहले मीडिया तो यूएन नेटली उसको ऊंचाई पर लेके जा रही थी, जब वो इस्लाम कबूल की उसके खिलाफ हो गई। क्यों? क्योंकि इस्लाम एक सच्चा मजहब है, इसीलिए। लेकिन हर मुसलमान का फर्ज है कि जितने भी गलत फहमियां इस्लाम के खिलाफ है, हम उसको दूर करने की कोशिश करें। और अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, जितना आई एग्री विथ यू, इट इज द मोस्ट अब्यूज रिलीजन। इस्लाम के खिलाफ सबसे ज्यादा किताब लिखी गई अकॉर्डिंग टू टाइम मैगजीन। थोड़ा माइक शुरू करें। मेरा ये भी कहना है कि इस अब्यूज में आज जो गेटअवेज इस्लाम में हैं, आज मैंने जैसे बोला कि कुरान बैठ के नमाज बैठ के भी पढ़ सकते हैं, उस तरह के और भी बहुत सारे गेटअवेज हैं। वो नॉन मुस्लिम्स आदमी वो गेटअवेज यूज करने के लिए इस्लाम को इतना यूज कर रहे हैं कि इसके लिए आप लोगों ने आज तक क्या किया है? व्हाट हैव यू डन टिल नाउ? इस अब्यूजन को रोकने के लिए आपने वो अब्यूज, ठीक है, आपने स्पिरिचुअली टेक्निकली काफी हद तक उसको ठीक कर लिया, बट देन अगेन जो इनहेरेंट प्रॉब्लम्स हैं उसको कैसे, क्या हुआ उसका? भाई साहब ये कह रहे हैं कि इस्लाम में जो गेटअवे है, मिसाल के तौर पर अगर आप बीमार है तो बैठ के नमाज पढ़ो, उसका लोग गैर मुसलमान फायदा उठा रहे हैं, उसको अब्यूज कर रहे हैं। ये भी है कि आज जैसे शादियां अलाउड थी पहले, मैं समझ गया, मेरे दिमाग में शादियां, आज एक कोई नॉन मुस्लिम आदमी उसको दूसरी शादी करनी होती है, बोलता चल भैया इस्लाम बन जाए, ठीक है शादी कर ली, हो गया। तलाक देना, चल भैया पकड़ इस्लाम कर लिया, तलाक दे दिया। भाई ये इतनी इजी क्यों कर दिया गया? तो आपने डायरेक्ट क्यों नहीं पूछा कि इस्लाम में एक से ज्यादा बीवी करने के लिए इजाजत क्यों है? डायरेक्ट सवाल पूछो, मुझे बुरा नहीं लगेगा भाई साहब। बीवी की बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ इसकी बात कर रहा हूँ कि जितने गेटअवेज हैं, मेरे सवाल को एक छोटे दायरे में ना लेके बड़े दायरे पे बिल्कुल सर, मैं समझ गया। भाई क्यों इतने इजीली क्यों यूज किया जाता है इस्लाम? बिल्कुल सर, इतने अच्छा धर्म है, इतना एक्सीलेंट है, इसको इतना इजीली क्यों ले रहे लोग? मेरा साहब अच्छा सवाल है कि गेटअवेज जो उसके हिसाब से गेटअवेज है, मेरे हिसाब से गेटअवेज नहीं है। मिसाल के तौर पे अगर कोई इंसान बीमार है, उसके लिए भी नमाज पढ़ना फर्ज है, ये गेटअवे नहीं है। लोग कहते कि इतना शिद्दत मजहब, आप कहते गेटअवे, लोग कहते शिद्दत, इतना स्ट्रिक्ट। नमाज पढ़ो अल्लाह के रसूल के तरीके से, खड़े रहो, रुकू करो, सजदा करो। बीमार है, खड़े नहीं हो सकते, बैठ के पढ़ो। बैठ नहीं सकते तो लेट के पढ़ो, लेकिन नमाज पढ़ो। जंग के मैदान में भी रुक
के नहीं पढ़ सकते तो ऊंट के ऊपर पढ़ो।